सर हमें इस म्यूज़ियम में रखे हुए इस फ्रिज के बारे में बताएं कि एज एन एजुकेशन बच्चे इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या। This one is a refrigerator, you can say, at very low temperature. Okay. This is freezer. So this goes to -80. This time it is -47. So you can put your RNA or protein extracted materials in this, so that they may not be degraded. वो जो है degrade नहीं होंगे. They will be preserved as it is. Otherwise, if you keep it at higher temperature, say -10 degree, -5 degree, so that will be degraded. To avoid the degradation in the given material, you have to put your material in this your freezer, and this is this run goes to -80 degree, right? But this time we are requiring -47, so it is maintained here only. And proteins are kept in this case, and these are the specimens of bryophytes which we are teaching. And these are used for the to display in the practical classes as well as in lecture classes. So we are taking these specimen to explain the students with the materials, है ना? Okay. So that's why we are using this type of preserved material to expose the student, to acquaint the student with the morphology, structure of the plants. So these are the bryophytes material, and then similarly we are having the pteridophytes materials, and these are the models. So these are showing that how these cells are they are made and how they are arranged. So how they are different from the other cells. तो इस तरह से ये क्या होता है, these cells are these models are displayed to students, ठीक है ना? तो these are the pteridophytes material, all are these pteridophytes material. These specimens are of pteridophytes only. So whenever we have classes, when we have our practical classes, then we are taking these your materials, these models and these specimens to show them in the class, so that they know the structure, they can recognize in the field. So because of that only we are showing the medals and other things, so that students may recognize when they go in the field. And these are the fossils. You must be heard this name, that fossils. By the time the animals and plants or whatever they preserved in rocks and other things in depositions. So these are called fossils. So they are having some impression. See, this is a stone, just like a stone, but when you see closely, you will find that they are having impression of leaf. देखिए ये लीफ का इंप्रेशन है, ये बीच में मिडरिब है और ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक है. तो इन दिस वे ऑल वेयर यू विल फाइंड द इम्प्रेशंस ऑफ द लीव्स. दिस इज द मिडरिब एंड दीज आर द लामिना. ओके, तो दीज आर द इम्प्रेशंस. सी दिस इज इम्प्रेशन, दिस इज द मिडरिब एंड दिस इज कॉल्ड impression of the fern foliage. Similarly, this one is Sigillaria. This is Sigillaria, and compressed fossil. This is compression. It is compressed, and that was impression. Only impression was there of the surface of the material, but here all the material was compressed. So this is the compression actually, and this is of Sigillaria, right? In this way all these structures. See, this one is also a compression. This is compressed material from both sides. So this is called compression. So this one is Lepidostauron, and these were collected long back by our Professor Rayad Khan and Kapil Ahmed Chaudhary. They were actually collected these materials and put here in this from Raj Mahal Hills area. This is there in Madhya Pradesh, I think, the Raj Mahal Hills area. Madhya Pradesh में देख लीजिएगा इसको. Very historic things we have. Yes. So these are the fossils or fossil records. So we show these fossil records to students when we are teaching the fossil part of the curriculum, right? So we are having one more full unit for this fossil study of the fossils. So we are showing these structures to them. सर ये आप केमिकल्स जो रखे हैं इसमें जो हमारे पत्तियाँ और पेड़ रखे हुए हैं, ये केमिकल क्या चीज़ है? ये प्रिजर्वेटिव है. ये जो बनाया जाता है, फार्मलिन है, एसिटिक एसिड है और अब्सोल्यूट अल्कोहल.
ठीक है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स हम लेते हैं और उसको मिक्स करके इसमें के अंदर हम प्रिजर्व करते हैं। अगर इसको हम वाटर में प्रिजर्व करेंगे तो क्या होगा कि इसमें डिग्रेडेशन हो जाएगा, इसकी सेल्स में, इसमें स्ट्रक्चर में कुछ बैक्टीरियल अनदर इन्फेक्शन होंगे। तो उससे क्या होता है, हम प्रिजर्वेटिव में डालते हैं इसको, सो दैट कोई बैक्टीरिया फंगल स्पोर्स मे नॉट ग्रो, वो इसमें बढ़ेगा नहीं, जरासीम और ये सब चीज़ें। तो इससे ये प्रोटेक्टेड रहेगा। इसकी बहुत सॉफ्ट वुड होती है। तो इसको हम दिखाते हैं कैसे ये ग्रो करता है, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो भी इंटरप्टेड होती है, बहुत प्रॉपर नहीं होती, जबकि माइनस में होती है। ये साइकस है और ये साइकस का ये अपर पार्ट का सेक्शन है। ये कैसा ये दिखता है, कैसे ग्रो करता है, ये टिप से कैसे ग्रोथ होती है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। ये इसका हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा हुआ है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे निकल रही है। So this is in chemical, sir. ये FAA formally acetic acid alcohol. Okay, sir. These are the three things which are used to preserve. And this one is साइकस मेल कोन। जैसे ये था ना, ये तो पाइनस का फीमेल कोन था, ये साइकस का मेल कोन था। पाइनस का फीमेल, ये मेल दिखाइए। मेल और फीमेल अलग अलग ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ये पाइनस का मेल कोन है, देखिए ये मेल कोन है। इसमें से क्या पोलन ग्रेन निकलते हैं और पोलन ग्रेन हवा में उड़ते हैं बहुत, उसमें विंग होती है उसके पोलन ग्रेन में। इसीलिए जब पहाड़ों पे जाएंगे आप तो उसको कहते हैं सल्फर शावर, यानी जब इसके पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं तो पूरा एरिया येलो हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज कॉल्ड सल्फर शावर। तो ये पूरे पहाड़ों पे आपको ये मिलेगा, जो मेल कोन से यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारे निकलेंगे और पूरे एरिया में फैल जाएंगे येलो, ठीक है ना। और ये फीमेल कोन्स है, इसका स्ट्रक्चर ये है। इसके ऊपर यहाँ पे सीड रेस्ट किया होता है। सर हम लोगों के लिए तो कॉमन चीज़ है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी साइंस है स्टडी में। जी, टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ दिस योर प्लांट्स यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो जितने आपके पास ब्रायोफाइट, एल्गी, यानी फ्रॉम एल्गी टू ब्रायोफाइट टू टेरिडोफाइट टू जिम्नोस्पर्म टू एंजियोस्पर्म, तो इस तरीके से हम इवॉल्व करते आ रहे हैं। तो ये इवोल्यूशनरी पैटर्न है। तो यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कल्टिवेटेड प्लांट स्पीशीज। बट ऑल्दो इट इज़ देयर, मतलब ये पाया जाता है अभी भी, लेकिन अब जैसे ये है, ये क्या है, जिंगो बाइलोबा, ये कहते हैं लिविंग फॉसिल। जो मैच्योर ट्री है वो देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ जगहों पे जैसे पालमपुर में IHBT पालमपुर, उसमें वहाँ प्लांटेशन किया है और भी जगह प्लांटेशन किया है। इंडिया में बहुत कम जगह होती है और इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। यानी अब इसके साथ के जितने सब खत्म हो चुके हैं, यही पड़ा हुआ है अपनी जेनरा में, अपनी फैमिली में, ठीक है ना। अपनी फैमिली का अकेला पौधा है, इसलिए ये लिविंग फॉसिल बोला जाता है। तो दिस इज लिविंग फॉसिल, दिस इज आल्सो जिम्नोस्पर्म, एज यू हैव सीन दिस। लाइक सर जैसे हम जू में प्रिजर्व करते हैं एनिमल्स के जो रेयर होते हैं, जी, उस टाइप से हम यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ये टेक्सस पैकाटा है, टेक्सस बहुत ही मेडिसिनल पौधा है। एंटी कैंसरस इसके जो केमिकल हैं वो टेक्सॉल इसी से निकलता है, टेक्सस पैकाटा, है ना। हाँ, तो इस तरीके से ये डिफरेंट सिट्रस है, ये पाइसे अलग अलग वो हैं। जैसे पाइनस आपने देखा, पाइनस का सिट्रस देवदारा, जिसको देवदार कहते हैं, वो उसका है। हम बच्चों को जब दिखाना होता है तो उनको दिखाते हैं कि ये ऐसे लीफ इसकी होती है, ये डिफरेंस होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ये आपका वो है पाइसिया है, ये बिल्कुल पाइनस जैसा ही दिखता है पाइसिया, लेकिन थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। हाँ, ये पाइसिया के कोन से, ये जो है मेल कोन्स हैं, ये फीमेल कोन है। हाँ, ये फीमेल, ये टेक्सास के फ्रूट्स हैं, देखिए टेक्सास के फ्रूट्स हैं। सिफेलोक्सेलस फीमेल कोन, सिफेलोटेक्स, एंड दिस इज द कोन ऑफ सिट्रस देवदारा। और सिट्रस के जो कोन होते हैं ये बिल्कुल ऐसे हाथ पे रखे होते हैं, बिल्कुल ऐसे हाथ पे ऐसे रखा हुआ कोन होगा। और जो पाइनस के कोन होते हैं वो लटके हुए होते हैं ऐसे। काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हाँ, उसमें जितना दूर से जैसे आप जाएंगे किसी पहाड़ पे तो आप देखेंगे कि पाइनस के वो दिखने जाएंगे, 3000 फीट से ऊपर आपको पाइनस के पौधे दिखने शुरू हो जाए, जिसको कहते, तो वहाँ देखेंगे तो उसके पौधे में जो फीमेल कोन लटका हुआ होगा। और जब और ऊपर जाएंगे 5000 7000 फीट पे तो आपको सिट्रस देवदारा मिलेगा, और इसके जो फ्रूट हैं ऐसे रखे हुए मिलेंगे, दूर से दिखेंगे ऐसे रखे हुए। तो दिस इज द प्रोसेस। दिस इज साइकस रैम्फाई फीमेल सीड। ये क्या है, नेकेड सीड होता है, ये पूरा सीड है, इसके ऊपर ओवरी नहीं है, कवरिंग नहीं है, सीड है सीधे, ठीक है ना। ये फर्टिलाइज होने के बाद ऐसे होता है इतना बड़ा, वरना आपको जल्दी फर्टिलाइज मिलेगा नहीं। इसका नाम है साइकस रैम्फाई। सर हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स देखे और प्लांट्स देखे,
सर ये बहुत अमेजिंग है हम्म। एज एन साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव। यस यस। इकोनॉमिक बॉटनी का तो हमारे इसमें पार्ट में इकोनॉमिक बॉटनी पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट को ये शो दिखाना है कि भाई क्या क्या आप यूज़ करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़, उससे क्या इंपॉर्टेंस है हमारे खाने पीने में या हमारे पहनने ओढ़ने के लिए, जो क्रॉस वगैरह बनते हैं उसके लिए। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमने रखे हुए हैं। अब देखिए इसमें आप देखेंगे चावल भी है, और ये वो अफीम का जो निकलता है उससे है, ये आपका चना है ना। तो ये देखिए आपका जूट का बना हुआ, मतलब हर चीज़ हमने यहाँ रखा हुआ है। और ये देखिए कपास कॉटन का है, और ये देखिए स्ट्रक्चर है ग्राम का, वो फुल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखिए बहड़ा है, हाँ। तो और यहाँ देखिए ये सब मॉडल्स हम जो बनाते हैं, जैसे सीड जर्मिनेट कैसे करता है उसको दिखाने के लिए हमने मॉडल बनाए हुए हैं। उसके थ्रू भी दिखाते हैं कि कैसे हाइपोजियल जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि उसकी जो कॉटिलिडा ना बाहर आ जाते हैं तो वो एपीजियल होगा। अगर कॉटिलिडा अंदर रहेगा जैसे चने में होता है तो हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। तो उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे मॉडल इसके भी रखे। हमें डिटेल में देखने को चीज़ें मिल रही हैं। जी जी, कि जूट ये कैसे बनता है, ये कहाँ से, ये फाइबर्स किसके होते हैं, और ये इससे फाइबर जो निकलता है इससे क्या बनता है आपको कोकोनट से। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक बॉटनी में लाते हैं और उसको बच्चों को बताते हैं। सिर्फ पढ़ा देंगे तो फोटो तो देख लिया, लेकिन हमने स्पेसिमेन रखा हुआ है और वो स्पेसिमेन से उनको दिखाते हैं। तो कहीं भी फील्ड में जाएंगे तो दे कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस वन इज काजनस कजाल। ब्रायोफाइट्स, ऑल आर दिस स्पेसिमेन्स ऑफ ब्रायोफाइट, दे आर बीन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर गोइंग फॉर एक्सकर्सन in tour of the students of BSc and MSc, so we are collecting all these things and they are kept here to show them in the class. तो इसके लिए हमने ये देखिए ये सारे आपके वो हैं फ्यूनेरिया के, और ये फ्यूनेरिया है ना, ये रिक्सिया है, मार्केंशिया है, ट्रेजियोनिया है, ऑल दिस जो ब्रायोफाइट्स जो इस वक्त हैं उसको हम लेते हैं। एंड दीज मटेरियल्स विच आर कलेक्टेड हियर, these are also provided to the student for the section cutting purpose, to know that how these cells are arranged in the stem, how the cells are arranged in the leaf, and how these your fruiting bodies are born, and what is the internal structure. So they cut the section and then they learn the structure, internal structure of the plant, okay, plant body. So these are the structure. So this one is plagioclasma, this is called plagioclasma, and so on. These are the algae materials. वही है ना, हाँ। These are the algae, different types of algae. देखिए ये है alwa. This one is the alwa. See the structure of this alwa, transparent and this structure. So these are the algae. Different types of algae are there. For example, this one is also alwa. ये भी algae है, और छोटे अलगी डिफरेंट, ये देखिए दीज आर दी डिजीज़ पार्ट, कि पौधे में क्या तरह की डिजीज़ होती हैं। जब वो पढ़ाते हैं हम तो उसके लिए हमने स्पेसिमेन रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल सिट्रस कैंकर बहुत ही कॉमन डिजीज़ है लीमू में, कि आप देखेंगे कि उस पर लीमू के ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। दिस इज़ द सिट्रस कैंकर। नॉर्मली यूज़ करते हैं नींबू, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी हाँ बताई सर। जी, तो ये डिजीज़ है। अब आदमी मतलब जो खरीदने वाला नहीं समझता है, बट ये डिजीज़ है। करेक्ट सर। और इसी तरह से दूसरे आपके ये जैसे आप अभी आपका मौसम है उसका क्या बोलते हैं गन्ने का, तो आप गन्ना देखेंगे तो उसमें कहीं रेड जब खाएंगे गन्ने को तो उसमें रेड आता है, उसके जहाँ वो है जॉइंट्स हैं, तो वहाँ रेड रॉट ऑफ शुगर केन, उसका भी हमने रखा हुआ है इसमें कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन क्या होता है, कैसे होता है ना, ये इसका स्ट्रक्चर। कोलिटोट्राइकम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो इसमें डिजीज़ कॉज करता है। कोलिटोट्राइकम फंजाई परफेक्टाई इसको कहते हैं एक्चुअली, तो वो उससे रेड रॉट, स्टेम का पोर्शन रेड हो जाता है, तो रेड रॉट कहते हैं इसको, पट्टी हो जाती है। ऐसे ही आपके इसके येलो वीन मोज़ाइक ऑफ ओकरा है ना, देखिए ओकरा में येलो इसकी वो हो जाती हैं, ये जो वो हैं वेन्स ये येलो हो जाती हैं इस ओकरा के अंदर। और भी होगा ओकरा का, ये देखिए ये लूज स्मट ऑफ वीट है, वीट के अंदर जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें ये डिजीज़ करता है, जिसको करता है अस्टिलैगो ट्रिटिसाई करता है। इस लूज स्मट ऑफ वीट जो डिजीज़ है दैट इज़ कॉज बाई अस्टिलैगो ट्रिटिसाई। ये है इसमें, ये है
एप्पल स्कैब डिजीज़, ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है एप्पल की, एप्पल स्कैब डिजीज़। ये उसका स्पेसिमेन रखा हुआ बच्चों को दिखाने के लिए कि अगर ऐसा होता है तो दिस इज़ एप्पल स्कैब डिजीज़। सिकुड़ जाता है एक जगह देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो डिफॉर्म हो जाता है, दूसरी तरफ सिकुड़ा होता है जिधर उस पर इन्फेक्शन होता है, तो उसको एप्पल स्कैब डिजीज़ कहते हैं। एंड दिस वन इज़ ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है बाजरा के अंदर, ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। और ये यहाँ से ही अलीगढ़ का ही, यहाँ से कासिमपुर से कलेक्ट किया हुआ है। और दीज आर दी क्या बोलेंगे, मशरूम्स, जैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बेसिडियो मशरूम्स और अदर मशरूम। तो ये भी मशरूम का वो है जो ट्री पे, ख़ास तौर से अकेशिया वगैरह के पौधे पे ये मशरूम मिलेगा आपको, उसके स्टेम पे लगा हुआ। एंड दिस वन इज द मॉडल ऑफ योर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम, है ना। ग्रोथ क्या आते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में फ़र्क ये होता है कि मोनोकॉट स्टेम में जो रिंग फॉर्मेशन नहीं होता, जो उसके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और डाइकॉट में क्या होता है एक लाइन में होते हैं, उसके बाद फिर उसमें आपस में कैम्बियम मिल जाते हैं उसके, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम वो मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस रिंग से क्या होता है कि कैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है सीजनल वाइज। तो इस तरीके से रिंग बनती जाती है, उसमें बढ़ती जाएगी और आगे स्टेम बढ़ता जाएगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर है कि हाउ दिस सेकेंडरी यानी ग्रोथ हैपेंस इन द स्टेम ऑफ द डाइकॉट, तो उसके लिए करेक्ट सर। सर बॉटनी में एडमिशन लेके हर चीज़ डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। यस, यू कैन नो ऑल द थिंग्स अबाउट द प्लांट फ्रॉम यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट टू इवॉल्व प्लांट। एंथर कैसे होते हैं, उसको अगर सेक्शन कट करें तो उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, जैसे ये सनफ्लावर का हेड कैपिटुलम बोलते हैं, तो ऑल दीज आर फ्लावर्स, है ना, दिस इज इन्फ्लोरेसेंस। ये जो पीला पीला दिख रहा है सब फ्लावर्स हैं, और ये भी रे फ्लोरेट्स हैं, ये डिस्क फ्लोरेट हैं। तो ऐसे हम उसको दिखाते हैं कट करके, और ये उसका फ्लोरल फार्मूला है, देखिए कि कैसे ये अरेंज है, जैसे आपका बीच में ओवरी कैसे है, फिर ये एंथर्स कैसे अरेंज है, फिर आपका सेपल्स कैसे अरेंज है, फिर पेटल्स कैसे अरेंज है। तो इस तरीके से कहते हैं फ्लोरल फार्मूला, कि वॉट एवर अरेंजमेंट इन देयर इन द ओवरी दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। तो उसमें सोलेनेसी, मालवेसी, यू कैन स्टडी दी ओवरी। सर हम कुछ टिम्बर्स देख रहे हैं, इनका क्या यूज है सर? हाँ, ये टिम्बर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस वाज एक्चुअली ब्रॉट बाय आवर प्रोफेसर कफीर अहमद चौधरी साहब फ्रॉम देहरादून, एंड दिस इज द कंपैरेटिव सुटेबिलिटी ऑफ द यानी सम इम्पॉर्टेंट इंडियन टिम्बर्स, कि इसमें क्या होता है कि क्या इसकी वेट है, स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्प्लिटिंग हैबिट क्या है, एंड सुटेबिलिटी क्या है एज ए पोस्ट, एंड शॉक रेजिस्टेंस कितनी इसकी है, ये सब दिया हुआ है। सर एक तरीके से हम पहचान सकते हैं हाँ, कि लकड़ी कितनी मजबूत है और मजबूती, किस हाँ, पेड़ की कितनी मजबूत शॉक है। रेजिस्टेंस क्या, तो कौन सी लकड़ी कहाँ लगाना है आपको, इससे आप स्टडी कर सकते हैं कि हमको इस प्लांट की लकड़ी चाहिए फॉर दिस पर्पस के ऊपर है कि कितनी स्ट्रेंथ वाली लकड़ी चाहिए। मान लीजिए कोई बीम बनाना है तो बीम के लिए कौन सी लकड़ी सूटेबल होगी, तो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर। ये सर हम जैसे हट बना हुआ देख रहे हैं, ये भी देहरादून से लाया गया। हाँ, ये भी, तो इसकी लकड़ी का क्या राज है? ये तो हमें एक तरीके से हट जो मॉडल बनाया है, ये नहीं, ये एक मॉडल है सिर्फ, ये हाउ यू कुड यूटिलाइज यानी इज योर बैम्बू, तो हाउ दिस बैम्बू कुड बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग हट्स, फॉर मेकिंग एनी अदर थिंग्स। तो बम्बू की यूटिलाइजेशन दिखाया है कि इसमें बम्बू जो है उसको आपने कट करके कैसे कैसे ये पूरी आप एक घर बना सकते हैं, हट बना सकते हैं, बेहतरीन, है ना, विदाउट मड। दिस इज मेड फ्रॉम बैम्बू ओनली, इट इज़ नॉट हैविंग एनी मड स्ट्रक्चर इनसाइड, so this is based on bamboo। तो सर एक तरीके से हम लकड़ी की मजबूती को देख करके, हाँ, दिस इज द सीजनल डिफेक्ट इन द टिम्बर। आप इससे ये पता कर सकते हैं कि सीजनिंग जो है, जब आप इसको लकड़ी को रखते हैं, क्या होता है कि लकड़ी को हम काट करके पहले उसको कुछ दिन रखते हैं, उसको बोलते हैं सीजनिंग। एक सीज़न उसको हम छोड़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर कुछ कमियां हैं, खराबियां हैं, तो आ जाएंगी एक साल के अंदर सीजनिंग में, और उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो सही लकड़ी यूज करें। तो ये बताता है कि क्या है, रिंग शेक है, ये स्प्लिट नॉट है, ऐसा है, तो ये सीजनिंग है, दिस इज कॉल्ड सीजनिंग। ये भी देहरादून का है। सीजनिंग जो होती है ना, आपकी वुड की सीजनिंग जो हम करते हैं, तो वुड को इसके अंदर रखा जाता है। सर एक चिमनी का मॉडल लग रहा है जी, बट इसके अंदर देखिए वुड के वो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, देखिए, और नीचे आग वग जलाते हैं, उसको करते हैं, तो उसको क्या होता है, सीजनिंग इसको कहते हैं।
तो ये सब करने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद ही वुड को रिकमेंड किया जाता है टू बी यूज फॉर दी फर्नीचर पर्पज और एनी अदर। उसके अंदर से स्ट्रांगनेस बढ़ जाती है। हाँ, उसको बढ़ा, टेढ़ी ओढ़ी ना हो, ये ना हो, उसको सीजनिंग बोलते हैं। अगर वो कुछ हुआ तो उसको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं फ्रॉम दिस। ये और ये जो है मटेरियल्स हैं जो हम फिक्स करते हैं जैसे स्टडी के लिए, साइटोलॉजी के लिए। सर हम टमाटर तो खाते हैं लेकिन यह केमिकल में रखे गए हैं। ये जैसे देखिए टमाटर है, इसको हम इसलिए रखते हैं केमिकल के अंदर, ये भी फिक्सेटिव FAA उसी में फिक्स है। और उसको हम इसलिए रखते हैं कि इसमें आपका बच्चों को डिसेक्शन करने के लिए देते हैं, उसमें से एम्ब्रियो को निकाल करके देखें वेरियस स्टेजेस कि कितने बड़े फ्रूट में कौन सी स्टेजेस एम्ब्रियो की होंगी, ग्लोबुलर होंगी, टार्पिडो होंगी, कि मैच्योर होगी, कौन सी होगी, ये हार्ट शेप होगी, ऐसे इसको हम देखते हैं। इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये भी ये उसका है, बार्ले का है। इसके अंदर हम मियोसिस देखते हैं स्टडी करने के लिए मियोसिस को, कि कैसे जो है पोलन ग्रेन फॉर्म करता है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन कैसे बनता है फ्रॉम डिप्लॉइड सेल, वो पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर से हम मियोसिस को स्टडी करते हैं। वही स्ट्रक्चर आपका यह है अनियन का, अनियन बड्स हैं जो अनियन की, इसमें से फ्लावर, ये इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें बड्स हैं, देखिए ये बड्स लगी हुई हैं, छोटी छोटी बड्स यहाँ देखेंगे आप। तो ये बड्स जो हैं उसमें से फिर एंथर्स निकलते हैं और उस एंथर को स्क्वैश करते हैं एसिटोकार्मिन के अंदर, और स्क्वैश करने के बाद हम उसको देखते हैं किस स्टेज में है, यानी मियोसिस में है ना। मियोसिस फर्स्ट में है, मियोसिस सेकंड में है। मियोसिस फर्स्ट में है तो उसमें प्रोफेज की कौन सी स्टेज है, ठीक है, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन कौन सी स्टेज है इसकी, ये आप हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, 5 स्टेजेस उसकी होती हैं, वो अलग करते हैं। ये स्टेम है, ये हम लोग डिफरेंट उसको जो है जैसे मोनोकाट और इसके जो फिक्स करते हैं, लीफ को फिक्स करते हैं, उसकी सेक्शन कटिंग करने के लिए। तो ये बच्चों को दिया जाता है सेक्शन कटिंग करने के लिए, टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम, हाउ द सेल्स आर अरेंज, हाउ दिस वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज, कैसे उसमें ग्रोथ हो रही है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ का वाला मटेरियल है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आएगा, जैसे उसके सेक्शन कटिंग करते हैं, कट कर इसमें देखते हैं। तो इसके लिए हम फिक्स करते हैं मटेरियल को, ये सारे मटेरियल वही फिक्स्ड है ना, सब देखिए ये तो वो है, अलग अलग हैं। और भी ये रूट का है, ये जियामेज की रूट का है, कि रूट का जो हम इसको करते हैं जियामेज है, देखिए तो इसका रूट को कट करके देखते हैं कि कैसा इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जियामेज का स्टेम का है ना, तो उसको सेक्शन काटते हैं, काट करके उसको देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो सेक्शन हम बता रहे हैं वो वही जो आपको दिखाया था अभी, जैसे ये है, ये अगर स्टडी इसको करना है आपको इस सेक्शन को, तो यू हैव टू कट द सेक्शन ऑफ ओरिजिनल मटेरियल एंड सी अंडर माइक्रोस्कोप डायरेक्टली, तब उसको माइक्रोस्कोप में आप देख के डायरेक्टली इस स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर इज हियर विच वन इज रूट। अगर आप रूट टिप को कट करते हैं, रूट टिप को अगर कट करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कि रूट टिप का ये है, ये सेंटर है, यहाँ से ग्रोथ होती है, इलांगेशन रीजन है ना, डिविजनल रीजन है, मैं यहाँ जहाँ पे माइटोटिक एक्टिविटी चल रही है वो दिखा देते हैं। मटेरियल ये इसका ये है, देखिए इसको, ये रूट है सर, ये काफ़ी छोटा है और ये इतना इसको बड़ा अगर हम देख रहे सेक्शन हैं। काटेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको देखें। और इससे इस रूट से माइटोसिस की स्टडी भी करते हैं हम, कि हम अगर ट्रांसफर सेक्शन नहीं काट रहे हैं तो उसको हम माइटोटिक की स्टडी करने के लिए इसको स्क्वैश करेंगे, तो उसमें क्रोमोसोम अलग अलग दिखेंगे किस स्टेज में है, ये प्रोफेज में है, मेटाफेज में है, एनाफेज में है, टीलोफेज में है, तो ये माइटोटिक स्टडी होगी। तो माइटोटिक स्टडी के लिए रूट का मटेरियल यूज़ करते हैं और मियोसिस स्टडी के लिए बड मटेरियल यूज़ करते हैं, जो अभी अनियन बड वगैरह दिखाया था मैंने। ग्रेट सर। और दीज आर दी वुड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड मटेरियल्स आर देयर। वी आर आल्सो टीचिंग स्टूडेंट कि हाउ दिस वुड्स आर, जैसे ये है, दिस वन इज ऑफ टीक, ये टीक की वुड है सर हम और ये मैंगो की है, शीशम, अच्छा हाँ एक मिनट, शीशम, दिस वन इज शीशम वुड एंड दिस वन इज टीक वुड। तो अगर आप कंपेयर करेंगे शीशम वुड में और टीक वुड में तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ एंड वो है, और ये थोड़ा सा इसके अंदर ओपन वो है, शेड्स, पोर्स, ओपन पोर्स है, इसके पोर्स ढक बंद है ना, इसके पोर्स बंद है। सर स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी फिर? स्ट्रॉन्ग, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये साल है, सबसे ड्यूरेबल रूट जो 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 वुड होती है ये साल है। तो देखिए, ये देखिए पाइनस की है, ये देख रहे हैं, ये पैड, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिखा रहा है रिंग सीजन का, कि इसमें ये हार्ड वुड हो गई, ये सॉफ्ट वुड हो गई, हार्ड वुड हो गई, सॉफ्ट वुड हो गई, पूरे होल स्टेम में आपको ऐसा दिखेगा। ये है आपका पाइनस। चलिए, ये देखिए एक चीज़ है आपका, वो क्या बोलते हैं, लाइकन्स।
बच्चों को दिखाना होता है। लाइकन इज द एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंजाई, ये लाइकन होता है, अलगी एंड फंजाई का एसोसिएशन लाइकन। तो जब वो एसोसिएट करते हैं तो लाइकन फॉर्मेशन करते हैं। और दिस इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, जब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है तो डिसोशिएट कर जाते हैं एक दूसरे से, तो वो हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो दिस इज द लाइक साइकस, ये सेक्शन उसका है साइकस का, वो कौन का, देखिए यहाँ जो है वो उसके सीड्स हैं और ये उसकी मेगास्पोरोफिल्स हैं। वो हम दिखाते हैं, जैसे इस एप्पल स्कैब डिजीज़ दिखा रहा था मैं, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स वो दिखाते हैं, डिजीज़ स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बताते हैं कि इनमें क्या क्या बीमारियां कैसे दिखेंगी वो। और ये कुछ ऐसे वो हैं, ये है क्लाइंबर है, ये उसकी वो है इंटाडा, दिस इज़ कॉल्ड इंटाडा। और ये बहुत लंबी होती है, यानी इतनी लंबी होती है, और क्लाइंबर की वो ये है। इसके बीज जो है देखिए सर, ऐसी वनस्पतियाँ तो बड़े बड़े हाँ जी, ये देखिए इसका बीज कैसा है, वेरी बिग सर। इंटाडा, दिस इज कॉल्ड इंटाडा, ठीक है ना इसका। और ये कुछ मटेरियल जैसे बीचर प्लांट आप देखिए वहाँ पे हैंड से बना हुआ है, ये सब जो है कुछ मटेरियल्स फिक्स हैं उसके अंदर, ब्राइफाइट्स के, और कुछ वो देखिए जिंको बाइलोबा है, ये पाइनस का दिखा दिया है ना, और ये फर्न है, और ये इक्विसिटम है, ये इक्विसिटम का है। और ये जो है आपका जिंको बाइलोबा, जो इसको अभी कहते हैं मेडन हेयर फर्न, जो कि अभी ऊपर एक ही बचा हुआ अपनी फैमिली। सर, ये भी कॉलेजेस फ्रॉम देहरादून लिखा हुआ है। ये सब मटेरियल जो है दैट इज फ्रॉम देहरादून, यानी वहाँ पे जो बनाए जाते हैं बम्बू से और दूसरी लकड़ियों से, उसके स्ट्रक्चर से। सर, यहाँ पे काफ़ी रिसर्च किया हुआ सामान हम देख रहे हैं। हाँ, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद है, और इसका साइज़ बहुत बड़ा है, 7 किलो की ये एक शकरकंद है। और ये बुलंदशहर फार्म की, अमरान मुस्तफ़ा साहब के फार्म की है, इसे इकबाल मुस्तफ़ा साहब लाए थे। ये तो अभी लेटेस्ट 2014 में ही लाए हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो आप बगल में देख रहे हैं इसके, ये 5 किलो का मैंगो है, और ये प्रोफेसर अमरान मुस्तफ़ा साहब के ही बाग का है, और 1984 में इसको प्रिजर्व किया गया था, जब से अभी तक ये वैसे ही रखा हुआ है।